Okay. Jai Jinendra to all. I am Purva Mutha, ROM co-convener for DigiNari and your project convener. And it's my absolute honor to be your moderator for this insightful session today on investment strategy for women. We have gathered here under the esteemed banner of Jito to engage an enlightening discussion, starting with the divine vibration of Navkar Mantra, a powerful invocation that aligns our mind, body, and soul. So I request to play Navkar Mantra Dhun, please. अनंत काल से नवकार महामंत्र के शब्दों की ध्वनि विश्व के कोने कोने में असंख्य लोगों को नकारात्मकता से मुक्त करती आई है। उन्हें रोग, भय और विपत्तियों से दूर रखती आई है। और अब एक ऐतिहासिक क्षण आने को है जब एक महा आयोजन के माध्यम से नवकार महामंत्र का उच्चारण विश्व कल्याण के लिए किया जाएगा। 9 अप्रैल का वो दिन होगा जब जैन समुदाय और जीतो द्वारा विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन होगा, जिसमें जातीय और भाषाओं के बंधनों को तोड़कर सभी संप्रदायों, समुदायों और विश्व भर के 108 देशों के लाखों लोग जुड़ेंगे और वे एक साथ मिलकर पवित्र महामंत्र का जाप करेंगे। ये जाप किसी व्यक्ति विशेष या स्वयं के लिए नहीं, बल्कि इस पृथ्वी की हर एक जीवात्मा के लिए होगा। उन्हें शांति मिले, वे सद्भाव, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलें, इसके लिए होगा। इसके अलावा 100 से अधिक स्थानों पर होगा अनुष्ठान का आयोजन और 6000 से अधिक देरासरों, स्थानक, उपाश्रयों से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इसे और भी अधिक खास बना देगा। इस अवसर पर वसुधैव कुटुंबकम की सोच से वैश्विक कल्याण का लक्ष्य रखने वाले धर्मगुरु, नेतागण, कई बड़े उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, खिलाड़ी और फिल्मी सितारे भी इसका मुख्य हिस्सा होंगे। तो आइए विश्व नवकार महामंत्र दिवस के इस अवसर पर विश्व कल्याण के लिए जुड़ते हैं। हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण संसार के निर्माण के लिए जाप करते हैं। I would like to take a moment to acknowledge the presence of our distinguished guest and esteemed speaker who have taken time out from their busy schedule with us. I now request Dipti Patni, Jalna Initiative Chairperson, to extend warm welcome to all. Jai Jinendra. Purva, am I audible? Yes. Jai Jinendra. And Dipti Patni and all the distinguished guests. दीप्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। To conduct दीप्ति जी, ओके, अब आ रही है? आ रही है? दीप्ति मैम, आपका कैमरा बंद कर दीजिए। ओके ओके डन। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। ऑडियो ओपन रखिए। जी। Am I audible now? Yes. Yes, thank you. Jai Jinendra, myself Dipti Patni, convener Jalna Initiative. Welcome all the distinguished guests here with us. It's an honor for Jalna Initiative for the first time
to conduct a national event with the ROM. It's a privilege to have you all with us today to embrace this journey of knowledge and meaningful conversation. I extend my heartfelt gratitude for Sonali ji, Sheetal ji, Ritu ji, Priyanka ji Jain, and entire working committee, our zone chairman Rajendra ji Jain, our chapter chairman Anil ji Sancheti, and entire ROM team, JLW ROM conveyor Dimple ji Pagaria, and chapter chairperson Priya ji Mutha, Purvaji Mutha, and all CPCS attending this session for giving us this opportunity. We are blessed to have you, Saurabh Ji Jain. Thank you for guiding us regarding investments and teaching top ways to make money. Thank you. Jai Janendra. Over to you, Purva. Okay. We are honored to have some of the most respected leaders of Jito with us today. Their guidance and vision continue to shape our collective journey towards progress. I now invite Dimple Ji Pagaria, ROM convener, to share her insights. Jai Janendra, all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all, our dynamic Sonali ji, Sheetal ji, Ritu ji, Yashma ji, Sarla ji, Shashi ji, Kavita ji, entire Priyanka ji, entire OPEX working committee, and our zone chairman Rajendra ji, Trupti ji, chapter chairman, and all the CPCAs of Pan India. I welcome you all on behalf of ROM. Today we have a great speaker. I think Saurabh Jain, he is such a busy person, but today for Jito, JLW, he's specially given us time. So on behalf of ROM and complete national team, Saurabh ji, we are really thankful to you and we are blessed to have you here today. You are going to guide us. I know ladies के पहले कहीं कहीं सब जगह पैसे छुपे हुए रहते हैं, तो how to invest, where to invest and what to do, you are going to guide us today. Thank you everyone. Today you all are here. Thank you so much. Over to you, Purva. Do we have Rajendra ji with us now? Right now in the meeting? Okay. Is Rajendra ji Jain with us today? Yeah? Okay, now I invite our chairperson, Sheetal ji Dugar, to share her perspective. Jai Jinendra, everyone. All my Apex dignitaries here present and members, dear member. Thank you, Jalna chapter, for keeping this session. It's very interesting and Saurabh ji is giving us time. That's very important for us and not to waste in all the speeches. I think we should hear more with Saurabh ji. And thank you, Dimple ji, for taking this session in ROM zone. And Sonali ji is here, our Apex DIC. She's here, so I request her also. Purva ji, Sonali ji is here, so please. Ma'am, Sonali ma'am nahi hai. I think she's here. I saw her. She was here, yes. She's there. Yes. Thank you. Sheetal ma'am, thank you. I request Sonali ji Dugar, director in charge, to come and give blessings. Sonali ma'am. Okay. Okay, she is not there, I think. Okay, thank you all for your valuable words of wisdom. I have the pleasure to invite Priyanka ji Jain, convener Diginari, to introduce esteemed speaker of the day. Thank you, Purvaji. Thank you so much, Saurabh ji, for taking your precious time. About Saurabh Jain, he's a visionary entrepreneur and financial expert with a distinguished career spanning multiple industries. As the co-founder of Stable Money, he empowers individuals to achieve financial stability. About his professional journey, he is a MD and CEO of Navi Mutual Funds, AVP of Business Projects at Swiggy, co-founder of Truth.in, head of analytical at Tiny Owl,
portfolio manager at basically Infotech, director of strategy at ST. Also, as a financial expert, he has been featured in various media outlets, including TV channels, newspapers, and podcasts. He has also written articles and blogs on personal finance, interesting, and wealth creation. Thank you, Purvaji. Over to you. Thank you. Purvaji, we have our zone chairman, so please request him also. Yeah. I request Rajendra Ji Jain, our zone chairman, to address us, please. राजेंद्र सर नहीं है, ज्वाइन किए नाम मेरे को सर्च किया बोला। बट नहीं दिखता Yeah, है। it's showing he has joined. अच्छा, Sir, are you there? Rajendra sir? एक बार अनम्यूट कर दो ना सबको, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस 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 So, सबको सादर जय जिनेंद्र। यस यस चालू रहने दो जय अपना। जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। सबसे प्रथम जालना लेडीज विंग को बहुत बहुत अभिनंदन। डिम्पल जी है और अपेक्स से भी रहेंगे कौन अभी मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा हैदराबाद हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन डिम्पल जी के मनवार के बाद में है, मैं बोला चलो यहाँ पे कोई मीटिंग में है, लेकिन चलो लेडीज अगर कोई इतना इनिशिएटिव लेता है अच्छा लगता है, और खास करके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उनके पास आती है तो कुछ बिजनेस में अपॉर्चुनिटी रहती है और बिजनेस में कमाई होने के बाद में इन्वेस्टमेंट होती है, तो डायरेक्ट बिजनेस में इतनी ये होने के बाद में भी इन्वेस्टमेंट में वही रिपीट कर रहा हूँ। तो अच्छा लेवल पे इनिशिएटिव लिया है, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था अभी, डिम्पल जी ने आने के बाद में बोला है नहीं करो, तो शीतल जी दुगर भी रहेंगे तो उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही लेडीज आगे बढ़ते रहे और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से कोई भी रहेगा एक्टिव, हमारी डिम्पल जी है काफ़ी, तो कहाँ पे भी कुछ सपोर्ट लगेगा, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र आपके साथ है और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आने वाला भी है 1.5 साल अभी अपने बचे हैं, तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम करके आगे मूव करेंगे लेडीज विंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। thank you so much. Now we proceed with the main person of the day, Saurabh sir. We are so eager to hear from you. And the stage is yours. Oh, thank you so much, Jai Jinendra, to everybody. It's such an honor to be part of this committee. I wish my mom was part of this committee, but just to give you a very quick background, I'm born and brought up, I'm born in Jalna. I was brought up in Aurangabad. I've spent my 25 years of life there. Then moved to IIT Bombay, and then wahan se the professional journey has started. But my roots, my family, a lot of my very close relative, Lunia family still lives in Jalna. So it's a quarterly or a semi-annually visit to Jalna to visit Ganesh Nagar. So I'm very honored to be part of this meeting where I'm given an opportunity to talk to all of you. And thank you so much, Purvaji, for following up and doing everything that is possible to make this session happen. Thank you so much for that. ये सेशन आई थिंक हिंदी करें इंग्लिश करें कैसे, व्हाट इज द कंफर्ट? मैं हिंदी भी कर सकता हूँ, मिक्स कर सकते हैं? ओके ठीक है, ओके ठीक है। सो ये सेशन मैंने थोड़ा सा आई थिंक कुछ चीजें प्लान की है, टॉकिंग अबाउट all the investments that generally we do, also to keep in consideration of all the recent events that have happened, right? Like for example, in Aurangabad, we have seen Ajanta Urban Cooperative Bank going down. There are a lot of other banks going down. और जब ऐसी चीजें होती है तब हमने इन चीजों के लिए कैसे प्लान करना चाहिए पहले से, क्या और चीजें हैं जो हो सकती है आगे, उनके लिए कैसे प्लान करना चाहिए। आज मैक्रो सिचुएशन, मैक्रो कंडीशंस कैसे है दुनिया में with this world wars, tariff from US, so what to expect from stock market, how you should plan your investments. मैं अभी के लिए सबको पूछने की जगह I'm just understanding कि this आज जो ऑडियंस है हमारी, ये लोग it's a family audience generally between let's say 25 to 45, 50 kind of an age. Some are working, some are not working, but very closely managing the finances. तो वो हिसाब से I'm talking about it. I think one important thing was कि
why financial literacy is very important, especially for women. और ये सिर्फ कुछ प्रोफेशनल लोगों के लिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कुछ बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो हम अभी बात करेंगे, एंड आई बिलीव एटलीस्ट आप 3 चीजें ऐसी ले जा पाओ जो आप जाके आपके घर पे बात कर सको, और जब आपके बच्चे या husbands or anybody that hear, I think they should feel really proud and valuable that we can do certain things that can change the way हमारी financial चीजें implement हुई है. So generally investments को लोग 4 हिस्सों में तोड़ते हैं. One is there is a fixed income investments, there is a equity investments, there is a real estate investments, and then there is a gold investments. These are the top 4 broad categories of investments that we generally see. There are a lot of other investments which are little complex. There are some PMS, AIF, those kind of investments, but वहाँ पर ticket sizes बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पर एक wealth advisor की जरूरत होती है, but एक common आदमी के लिए ये 4 investments बहुत जरूरी है: fixed income, equities, real estate and gold. इनमें distribution at a family level, not at an individual level, generally is 65% of your money, 65 to 70% of your overall investments balance sheet should sit in fixed income, real estate and gold, and remaining 25 to 30% should be in equities. That's the general thumb rule that is being followed. This covers your current requirement, this covers your kids' educations, kids' marriage, all the future requirements. This also covers your retirement. और जैसे जैसे you move towards retirement, your fixed income investment portfolio should keep going up और आपका equity portfolio should keep going down, right? So अगर आप let's say 35 हो, आपका 60% फिक्स्ड इनकम है, 40% इक्विटी है. अगर आप 55 हो, आपका 80% या 90% फिक्स्ड इनकम होना चाहिए और 10 से 15% आपका इक्विटी होना चाहिए. दैट्स द जनरल ट्रेंड, बिकॉज रिस्क टेकिंग एपेटाइट as you go towards retirement goes down, hence equity has to be lower. अब फिक्स्ड इनकम में क्या क्या आता है? सो फिक्स्ड इनकम में ब्रॉडली देयर आर 2 कैटेगरीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी इज फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट इंडिया में अगर मैं आपको सिर्फ नंबर्स के टर्म्स में बताऊं तो 18 करोड़ इंडियंस आज फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं. लगभग 65 लाख करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टेड है. And this is India's largest asset class by far, right? Stock market, mutual fund में हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ आता है. FDs में हर साल 7 से 8 लाख करोड़ आता है. तो आज भी ये इंडिया का काफी पॉपुलर सेगमेंट है. बीच में पिछले कुछ सालों में काफी हुआ है डिस्कशन की FDs इन्फ्लेशन बीट नहीं करते, FD इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा स्टॉक मार्केट्स में डालो. बट इन द रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट्स आर परफॉर्मिंग, पीपल हैव रियलाइज कि FD इज अ वेरी सेफ एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. और FD में 4-5 चीजें बहुत क्रिटिकल है जो समझना है. और ये मैं मानता हूँ कि अगर आप HDFC, ICICI, SBI इन सारे बैंकों में रखते हो तो आपको 5.5 से 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है. बट आज इंडिया में लगभग बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आपको 8, 8.5, 9% तक का इंटरेस्ट रेट देते हैं. अब इन बैंकों के बारे में हाउ वी शुड डू द एनालिसिस, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि RBI की तरफ से एक DICGC इंश्योरेंस होता है. दिस इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी इंडिविजुअल अप टू 5 लाख रुपीज. तो अगर आप किसी भी बैंक में FD करते हो, उस बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा आप इंडिविजुअल का इंश्योर्ड होता है. सो अगर उस बैंक को कभी भी कुछ भी हो जाए, वो पैसा आपको RBI वापस करता है 90 दिनों, राइट? अभी जितने भी महाराष्ट्र में सारे बैंक्स के केसेस हुए, बॉम्बे का जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का केस हुआ, ये सारे केसेस कम्स अंडर DICGC. विद इन 90 days दिस अमाउंट विल बी पेड टू द रिस्पेक्टिव डिपॉजिट होल्डर. ये 5 लाख रुपए आपका होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सॉरी, मेरा ऑडियो आ नहीं रहा है क्या? आई थिंक समबडी इज मेंशनिंग. ओके, तो ये 5 लाख रुपए इंश्योर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि लोग ये गलती करते हैं कि 5 लाख रुपए का FD बना देते हैं और वो बोलते हैं कि ये इंटरेस्ट, ये पूरा पैसा सेफ रहेगा. बट जब जैसे जैसे आप उस पर इंटरेस्ट कमाते हो, लेट्स से वो 5,50,000 हो जाएगा और अगर बैंक को कुछ हो जाता है, आपको RBI फिर भी 5 लाख रुपए ही वापस देता है. तो अगर आप किसी भी बैंक में इंश्योरेंस के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो आप प्लीज 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कभी मत करिएगा. आप हमेशा 4,30,000, 4,40,000 की FD करिएगा, सो दैट इंटरेस्ट को जोड़ के
या 5 जाता है, तो 2 साल, 3 साल, 5 साल जब तक आपकी एफडी है, अगर बैंक को कुछ भी होता है, आपका इंटरेस्ट का पैसा और प्रिंसिपल का पैसा पूरा वापस आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसलिए हम ये 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसी एफडी, वो सारा पैसा एक बैंक में रखना नहीं चाहिए। 2 रीजन है। फर्स्ट इज, अगर उस बैंक को कुछ हो जाता है, एंड विच एवर बैंक इज दैट, अगर उस बैंक को कुछ हो जाता है तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस आए। सो आइडियल इज कि आप 5-5 लाख रुपए करके अलग अलग बैंक में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सेकंड इज, आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हो वो काफी लो होगा। एसबीआई में, एचडीएफसी में आप 5-5.5% की एफडी, जहां आज मार्केट में 8.5-9% के एफडीज अवेलेबल है। दर बिग बैंक्स लाइक Utkarsh Small Finance Bank, Suryodaya Small Finance Bank, Shivalik Bank. These are all multiple banks which are small finance banks which are still listed on the exchanges. So इन पे पूरा RBI का governance होता है. These are great banks. It's just that because they don't market so much, they give higher deposit to attract a lot of customers. So ये banks अच्छे banks है जहां पर आप आपके FDs कर सकते हो, so that you can earn a higher interest. और एक बहुत मैथमेटिकल आंसर बताऊं तो आपकी 5 लाख की एफडी 5 साल में अगर आप 8% पे रखते हो, और 5 साल की एफडी 5 लाख की एफडी 5 साल के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट पे रखते हो, आपको 25,000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। हाँ, मैं बैंकों के नाम बताता हूँ। सो दीज आर बैंक्स लाइक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी बैंक, उज्जीवन बैंक, देना बैंक। बहुत सारे बैंक्स हैं, इनके काफी सारे ब्रांचेस औरंगाबाद, जालना में भी अवेलेबल है। और ये बैंक्स आप हमारे स्टेबल मनी के ऐप पर भी आपको मिल जाएंगे, जहां पर आपकी एफडीज डिजिटली बुक हो जाएगी, आपको कहीं ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं। तो आप स्टेबल मनी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब हमने स्टेबल मनी 3 साल पहले शुरू किया था, तब ये पहली चीज मुझे भी पता चली। और तब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि आपको आपकी एफडीज डाइवर्सिफाई करनी, बिकॉज तब तक सारा पैसा उनका अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में था। और उन्होंने वो किया, और 5-6 महीने बाद द होल थिंग ऑफ अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैपेंड एंड दे सेव्ड मनी। तो मेरा एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, इफ आई कांट टेल you anything more, but this is one thing that everybody should follow, that please be aware of all the cooperative banks, because you don't know really what is happening. Alerts होते हैं, and RBI has become very strict now over a time, and that's why you will see that in last 12 months around 20-25 banks have been closed nationally, right? हमको लगता है कि हम लोगों को जानते हैं, 30-40 साल से ये बैंक एग्जिस्ट करता है, ये तो पास ही में है। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो बता रहा हूँ। सो आइडियली प्लीज, ये आपका, दिस इज योर हार्ड अर्न मनी, ठीक है, आपका और आपकी फैमिली का। पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जब बैंक्स डूबते हैं। तो प्लीज आपका पैसा 5-5 लाख करके डाइवर्सिफाई करिए, और ये पैसा हमेशा के लिए सेफ रहेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है अभी एफडीज के बारे में। सो एफडीज आर जनरली लिंक दैट I'll take this question, HDFC wala. I think it's definitely safe to keep money in HDFC banks and ICICI banks and SBI banks. But वहां पर प्रॉब्लम ऐसा है कि जब आप लार्ज क्वांटम में पैसा रखते हो, फर्स्ट वी नो कि HDFC बैंक डूबने के चांसेस 0.01% है, बट देर आर स्टिल चांसेस, बिकॉज हमने येस बैंक के साथ भी ये होते हुए देखा है, राइट? सो येस बैंक ऑल्सो वेंट थ्रू ऑल द टर्मोइल इन 2020, जब लोग डिपॉजिट से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, उस टाइम पे वो काफी बड़ा बैंक था। सो आई वुड स्टिल बी कॉशियस ऑफ नॉट ट्रस्टिंग एसबीआई, एचडीएफसी, ऑल ऑफ दिस बैंक विद ऑल ऑफ माई मनी। आप लार्ज चंक रख सकते हो, बट प्रॉब्लम वहां पर वो है कि जब आपको सिर्फ 5 लाख पे 25,000 रुपए का डेल्टा मिल रहा है इन इंटरेस्ट रेट, सिर्फ 0.5%, एचडीएफसी के रेट और बाकी जो सारे बैंकों के रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें लगभग 2% का डिफरेंस है। तो आपकी एक 5 लाख की एफडी 5 साल में लगभग 1 लाख रुपए कम कमाएगी इन एचडीएफसी वर्सेस अदर बैंक्स। तो एंड अगर आप दूसरे बैंक में रखते हो, वैसे भी वो सारा पैसा सेफ है डीआईसीजीसी इंश्योरेंस के लिए। सो व्हाई टू अर्न लेस इंटरेस्ट रेट by keeping your money in a bank which is offering lower interest rate? So that is most important thing. और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रीमेच्योरली अगर आप किसी एफडी से पैसा निकालना चाहते हो, तो हर बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। सो
हर अलग अलग पेनल्टी चार्जेस होते हैं. सो इट्स ऑलवेज सेफ टू हैव 4, 5, 6 बैंक्स इन विच यू हैव डाइवर्सिफाई, बिकॉज आप उनमें से चूज करके पैसा निकाल सकते हो कि कहाँ सबसे कम पेनल्टी लगती है. So that generally plays a very important role. And hence, I still personally myself or tell my family or tell all the customers of Stable Money that you should diversify your investment in 4, 5, 6 banks so that you are safe, that everything is insured, and you are still earning higher interest rate. And this has become very important these days now because आप देख रहे हो पिछले 1-2 साल से एफडीज के रेट ऊपर थे. Everybody was earning 8-9%. जितने भी इनमें रेट्स है, अब आरबीआई अपने रेपो रेट कम कर रहा है बिकॉज जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तब आरबीआई लिक्विडिटी टाइट करने के लिए रेपो रेट्स बढ़ाते हैं बैंक के. और जैसे ही रेपो रेट्स बढ़ते हैं, बैंक्स हैव टू इंक्रीज द एफडी रेट्स सो दैट दे कैन गेट मोर डिपॉजिट्स. बट अभी टू टाइटन, टू लूज मोर लिक्विडिटी एंड हैव मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, यू सी बजट में भी बोला है. और अभी भी रेपो रेट्स ऑफ आरबीआई विल कीप ड्रॉपिंग. एक ड्रॉप उन्होंने अभी फरवरी में किया, एक ड्रॉप अभी आपको अप्रैल में होगा, एक ड्रॉप जून में होगा. तो इस साल में लगभग 1 से 1.5% का ड्रॉप होगा. सो जब ये रेपो रेट ड्रॉप होता है तब इसके बाद बैंक्स अपने एफडी रेट्स भी ड्रॉप करती है. राइट, आपका होम लोन भी ड्रॉप होगा बट आपका एफडी रेट भी ड्रॉप होगा. तो जनरली हमारा रिकमेंडेशन ये है कि अगर अगले 2-3-4 महीनों में आप लंबे अवधि की एफडी हायर इंटरेस्ट रेट पे आज ही लॉक कर दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक एफडी जो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है विच इज 8.6%, वो 8.6% की एफडी आपको 5 साल के लिए है. सो अगर आज अगले 5 साल में हमको 100% पता है एफडी के रेट 1 से 1.5% गिरने वाले हैं, सो आप अभी उस एफडी को लॉक कर दीजिए सो दैट आप 5 साल तक 8.6% का इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं. सो अगले 2-3 महीने इज अ गुड टाइम to invest for a long term FDs, right? So that is our recommendation on FD. और लगभग जैसे मैंने आपको बोला कि 60-65% आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए. आई थिंक 25 से 30% of your overall investment should sit in fixed deposit, which is safe, which is liquid. आपको जब भी जरूरत हो आप वो पैसा निकाल सकते हो, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है. So this is one thing on FDs which I wanted to communicate. And I think towards the end I'll take more questions on FDs. सेकेंड इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. सो ये चीज है जो अगर आप टीयर 1 सिटीज में जाओ या पीपल हु आर मोर अफ्लुएंट, हु आर मोर अवेयर अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. सो कॉर्पोरेट बॉन्ड इज वेरी सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट. सो आप जब फिक्स डिपॉजिट करते हो तब आप बैंक को पैसा देते हो, वो बैंक अपना पैसा अलग अलग कंपनीज को देते हैं लोन की तरह. और वही कंपनीज कुछ पैसा बैंक से लेती है और कुछ पैसा डायरेक्टली कस्टमर से लेती है. सो अगर मैं पैसा दे रहा हूँ एचडीएफसी को, एचडीएफसी लेट्स से वो पैसा देगा मारुति को, बट मारुति, ब्रिटानिया जैसी कंपनीज अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी इश्यू करती है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाती है और बोलती है कि यार आप हमें पैसे दो, मैं आपको एक फिक्स रिटर्न दूंगा, विच इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. इसमें आपको जनरली रिटर्न्स मिलते हैं लगभग 10 से 11%, और कुछ कुछ अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको 11 से 12% भी रिटर्न मिलता है. सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जहां पर आप 5 से 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट यू कैन ट्राई कीपिंग इट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, जहां पे आपको एफडीज में 8.5-9% मिलेगा, वहां पर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 11 से 12% मिलेगा. आई थिंक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए सिर्फ 2 कंडीशंस है जो ध्यान रखनी चाहिए. फर्स्ट इज आप जब कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. दूसरा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जनरली लिक्विडिटी होती नहीं है. अगर आप कभी भी निकालना चाहो तो वो इतना आसानी से कॉर्पोरेट बॉन्ड निकलता नहीं है. तो आपके पास अगर 5 से 10 रुपए 100 रुपए में से ऐसे हैं जो आपको पता है कि आपको 2 साल 4 साल के लिए नहीं लगने वाले हैं, वो पैसा आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रख सकते हो. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. मुथूट का कॉर्पोरेट बॉन्ड है, श्रीराम का कॉर्पोरेट बॉन्ड है, बजाज का कॉर्पोरेट बॉन्ड है, टाटा कैपिटल के कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट बॉन्ड है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट बॉन्ड. सो देयर आर लॉट ऑफ दीज बॉन्ड्स व्हिच आर अवेलेबल. ये भी हमारे स्टेबल मनी के ऐप पर अवेलेबल है, आप कभी भी जाके देख सकते हो. And the entire process is online. This is also interesting investment to earn that 3-4% incremental returns on your investments. I think another difference between FD and bonds is जैसे FDs में पैसा 5 लाख तक RBI इंश्योर करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसा कोई इंश्योरेंस होता नहीं. सो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि आप किस टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करें. जैसे हमें पता है
HDFC और SBI को कुछ नहीं होना है। वैसे हमें पता है कि ब्रिटानिया, बजाज, मुथूट, these are 70-80 years old legacy companies. These are good bonds to purchase. So और ये सारा रिसर्च करके भी हम अपने कुछ बॉन्ड स्टेबल मनी के ऐप पर डालते हैं, बट दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू अर्न दैट 3-4% रिटर्न एक्स्ट्रा। और ये प्रोडक्ट पिछले बहुत सालों से अवेलेबल है मार्केट्स में, बस हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल था नहीं, बिकॉज इसका मिनिमम टिकट साइज तब था 10 लाख रुपए का। आज ये बॉन्ड्स आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए के मिनिमम टिकट साइज से खरीद सकते हो। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आपको बॉन्ड लेना है तो आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। So now there is a lot of push from SEBI to make this product easily accessible to retail investors. So अभी के लिए I think आप जब आपकी कम्युनिटी में भी बात करोगे और देखोगे, किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, but it's a great product which will slowly pick up. So it's, I think everybody I believe should explore this. Third product is equity. I think equity थोड़ा tricky product है, बिकॉज इक्विटी में हम दोनों साइड के बहुत सारे स्टोरीज सुनते हैं कि बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया और बहुत लोगों का बहुत पैसा डूबा है। बट बिकॉज दिस इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर वुमेन, आई वुड से कि यार इक्विटी में आप FNO जैसी चीजें, विच इज फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये तो आप बिल्कुल भी मत करिए। इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, it's just that it's not the product that women should invest, because it involves a lot of stress and it is generally doesn't make money to retail investor. There are very few top 1%, 2% जो दिन रात FNO ही करते हैं, उनके लिए this is a great product. So हमारे लिए ग्रेट प्रोडक्ट कौन सा है? हमारे लिए ग्रेट प्रोडक्ट इज म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड हमने सब लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड सही है, एंड देयर आर मल्टीपल म्यूचुअल फंड। अगर आप जाओ तो देयर आर 47 म्यूचुअल फंड कंपनीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, और हर एक के पास लगभग 30 से 40 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स है। सो अगर आप देखोगे कि इन 1000-1500 प्रोडक्ट में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता है, तो सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इंडेक्स फंड्स। ये इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। इंडेक्स फंड्स में आपको दो एग्जांपल बताता हूँ, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है और एक बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड है। तो ये क्या करते हैं, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेते हो लेट्स से 500 रुपए का, तो ये 500 रुपए लेके इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है, उन 50 कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करता है, जहां पर आपको इंडिविजुअली उन 50 कंपनीज के स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई स्टॉक 2000 का होगा, कोई स्टॉक 5,000 का होगा, कोई स्टॉक 200 रुपए का होगा। अब उतना अगर कैश हमारे पास नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में डालो, आप 500 रुपए डालोगे, म्यूचुअल फंड उसको तोड़ेगा और अलग अलग 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। सो द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर विमेन व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड इज निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इंडिया के टॉप सारे बैंकों में इन्वेस्ट करता है जब आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सो अदर देन ऑल द म्यूचुअल फंड, बिकॉज स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सारी चीजों में रिसर्च होना बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों में जो आदमी म्यूचुअल फंड में बैठा हुआ है वो डिसाइड करता है कि उसको किस स्टॉक में पैसा डालना। सो इट्स वेरी पर्सन डिपेंडेंट। सो अगर वो आदमी जॉब छोड़ के चला जाता है या वो कोई ऐसी प्रोडक्ट पे बैठ लेता है जहां पर आपको लगता है कि दिस प्रोडक्ट माइट नॉट वर्क, वो आपके कंट्रोल में है नहीं, सो यू गिव योर मनी एंड दैट पर्सन डिसाइड वेर ही इन्वेस्ट। बट ऐसी चीजें इंडेक्स फंड में होती नहीं है। इंडेक्स फंड इज अ वेरी क्लियर प्रोडक्ट जहां पे every money that goes has to equally be distributed between those Nifty 50 companies and Bank Nifty companies, जहां पर किसी भी पर्सन का कोई भी जजमेंट कॉल नहीं होगा। सो इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट टू डू। आप देखोगे निफ्टी 50 ने पिछले 20 सालों में कंसिस्टेंटली हर साल 12% रिटर्न दिया है। सो आप अगर कैगर निकालोगे तो आपको 12% का रिटर्न मिलता है, विच इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन दिस। और म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मिलता है। सो अगर आप 2 साल के ऊपर रखते हो तो आपको सिर्फ 12.5% का टैक्स लगता है, और अगर आप 2 साल के नीचे रखते हो तो आपको आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता है। सो म्यूचुअल फंड अगर आप करना चाहोगे तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये दो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है। मैं टिप नहीं देना चाहता, सो डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मैं मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए अभी देर इज अ स्लाइटली मोर मनी इन बैंक निफ्टी देन निफ्टी 50। अगले 3 से 4 साल में या 4 से 5 साल में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा करेगा। द ओवरऑल इकोसिस्टम इन इंडिया, बैंक्स विल परफॉर्म बेटर
than the other companies. So अगर आप 100 रुपए डालना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, मैं मेरा 100 रुपए 60 रुपए बैंक निफ्टी में डालूंगा और 40 रुपए निफ्टी 50 में डालूंगा। एंड मैं खुद म्यूचुअल फंड का सीईओ रह चुका हूँ, सो और हम बहुत प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट मेरा पर्सनली सारा पैसा इज इन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब आप इन्वेस्टमेंट ऐसा चाहते हो जहां पर आप रोज रोज उसे खोल के ना देखो, रोज रोज स्ट्रेस ना लो। अगर मार्केट ऊपर है नीचे है आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। सो सेफेस्ट प्रोडक्ट इज दैट। व्हाट इज द वे टू इन्वेस्ट इन दिस? बेस्ट इज एसआईपीज। आप एसआईपीज कर सकते हो। अलग अलग एसआईपीज के तरीके होते हैं। देयर आर डेली एसआईपीज, देयर आर वीकली एसआईपीज, देयर आर मंथली एसआईपीज। तो आपको जिस जिस फ्रीक्वेंसी में करना चाहते हो आप उस फ्रीक्वेंसी में कर सकते हो। सबसे अच्छा होता है कि आप मंथली एसआईपी करो। अगर आप हर महीने 5,000 10,000 रुपए डालना चाहते हो तो हर महीने की एक फिक्स तारीख पे वो एसआईपी आपका कटता रहेगा। सो दैट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। और इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड हमारे ऐप पर है नहीं, बट आप ग्रो, जीरोधा, इन सारे ऐप्स पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बस एक चीज है, हम बहुत बार ये देखते हैं कि हमारे रिलेटिव्स, फैमिली, पहचान वाले लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्रोडक्ट को, आप उनसे भी ले सकते हो। बस उसमें और इन प्रोडक्ट्स में जो आप ऐप के थ्रू लोगे उसमें बस एक डिफरेंस रहेगा, जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं वहां पर उन लोगों का एक कमीशन होता है, जो कमीशन आपके प्रॉफिट से कटता है। और जब आप ऐप पे लेते हो प्रोडक्ट तो ऐप कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी 50 का प्रोडक्ट लिया ग्रो ऐप से, आपको 12% मिला। वही सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लोगे तो आपको 11.5% मिलेगा रिटर्न, बिकॉज आधा परसेंट ऑफ योर इन्वेस्ट ऑफ योर रिटर्न्स ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट विल गो टू दैट डिस्ट्रीब्यूटर एज अ कमीशन। सो अनलेस किसी का बहुत स्पेसिफिक प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे इस आदमी से ही लेना है बिकॉज मुझे भरोसा है इन पे, ये मुझे सही गाइडेंस देते हैं। आपको अगर पता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है स्पेसिफिकली, तो आप किसी भी ऐप पर जाके पूरा डिजिटली प्रोसेस करके इन प्रोडक्ट को ले सकते हो, जहां पर आप वो साल का आधा परसेंट बचा सकते हो, जो 5 से 10 साल में 8 से 10% का इंक्रीमेंटल रिटर्न मिलेगा। थर्ड प्रोडक्ट इज रियल एस्टेट। आई थिंक जैन लोगों में बताने की जरूरत नहीं है, रियल एस्टेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो एवरीबडी इन्वेस्ट हेविली इन रियल एस्टेट। देखने के तरीके थोड़े अलग है। मेरा देखने का तरीका ये है, जो आपका रहता घर है, जो आपकी चीजें हैं, वहां पर वैल्यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दैट हाउस यू शुड बाय एंड कीप इट। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लिक्विडिटी का। सो आपका पैसा जो रियल एस्टेट में होता है, जब आप चाहते हो तब आप निकाल नहीं सकते। सो अनलेस यू हैव एक्सेस मनी दैट यू आर ओके टू कीप इट लाइक दैट, रियल एस्टेट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। जनरली शुड नॉट बी मोर देन 10 to 15% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। अभी बहुत माइंडसेट चेंज हो रहा है लोगों का कि डोंट बाय, स्टे ऑन रेंट, बिकॉज बाय में आजकल मार्केट्स में रेंटल यील्ड्स और अप्रिसिएशन ऑन रियल एस्टेट हाउसेज इज वेरी वेरी लो। बट अभी भी मैं जानता हूँ कि आई थिंक व्हेन वी गो टू टियर 2 टियर 3 सिटीज ऑफ इंडिया, वहां पर प्लॉट्स जगह में पैसा काफी होता है। सो वी आर नॉट द एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कैन कीप अप टू 10 to 15% into real estate product. Last product is, which is the very famous product and favorite product of all the people here, is gold. अब गोल्ड में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आप गोल्ड किस कारण के लिए ले रहे हो। अगर आप गोल्ड यूज के लिए ले रहे हो देन प्लीज बेशक जाइए और आप ज्वेलरी बनाइए, वो गोल्ड लीजिए। बट अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, फ्यूचर में शादी के लिए ले रहे हो, राइट, तो आई थिंक फिजिकल गोल्ड इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। फिजिकल गोल्ड में दो तीन चीजें होती है। फर्स्ट इज आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको जीएसटी लगता है, राइट। सो अब कभी कभी हम ज्वेलर्स को जानते हैं तो कैश में करते हैं, वो जीएसटी नहीं लगता है, बट फिर भी जहां पर आप जानते नहीं हो वहां पर आपको जीएसटी लगता है। जब आप खरीदने जाते हो मार्केट से थोड़े कम प्राइस में मिलता है, जब आप बेचने जाते हो तभी भी मार्केट का जो प्राइस है उससे, सॉरी, जब खरीदने जाते हो तो मार्केट से ज्यादा प्राइस में मिलेगा, जब बेचने जाओगे तो मार्केट से थोड़ा कम प्राइस मिलेगा। तो वो एक आर्बिट्राज होता है जो जनरली ज्वेलर्स कमाते हैं, जो हमें नहीं मिलता। प्लस जितने टाइम तक आपके पास वो फिजिकल गोल्ड रहेगा उसको सेफ लॉकर में रखने का और बाकी सब चीजों का एक खर्चा होता है। तो हम रिकमेंड करते हैं सबको कि अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, एंड व्हाई आई सेड गोल्ड इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और एक बहुत सिंपल एनालॉजी देता हूँ। 20 साल पहले अगर आपको एक घर खरीदना था तो आपको
1 किलो सोने में आपको घर मिल जाता, जो भी उस टाइम पे रेट था। आज आपको कुछ भी घर खरीदना है, 1 किलो सोना लगभग 90 लाख में आपको एक घर मिल जाएगा। और आज से 20 साल बाद भी अगर आपको घर लेना है तो 1 किलो सोने में आपको घर मिल जाएगा। सो इन्फ्लेशन कहीं भी जाए, gold is a best hedge product for inflation, and that is what we should have, right? So gold has to be good 15 to 20% of your overall investments. But अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो बेस्ट प्रोडक्ट इज नॉट फिजिकल गोल्ड, बेस्ट प्रोडक्ट इज गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट बताता हूँ। फर्स्ट इज आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ले सकते हो, जो मार्केट्स में प्राइस चल रहा है आपको सेम प्राइस में मिलेगा, आपको कोई आर्बिट्राज नहीं मिलता है। सेकेंड इज आप जब भी बेचना चाहोगे आप इमीडिएटली बेच सकते हो और जो मार्केट में प्राइस चल रहा है आपको मिल जाएगा। 2 साल तक अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो आप बेचते हो तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो वहां पर भी आपका टैक्स कम लगता है गोल्ड का। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट प्रोडक्ट जहां पर आप डेली, वीकली, मंथली SIPs करके भी आप आपका पैसा सेव कर सकते हैं। सो गोल्ड अदर देन ज्वेलरी, I think try and buy it through any gold mutual fund. It's a great product. I think overall on this, the just last part that I wanted to speak was every family, and I've come from a very humble background, very middle class background, and I've seen all the struggles. Keep time changes very fast, right? Today, whatever looks good, tomorrow it might not look good. तो हम चाहते हैं और हमारा मिशन भी है स्टेबल मनी ऐप का कि हम इंडिया में सारे लोगों का इमरजेंसी फंड बना सके कि जो डिफिकल्ट के टाइम में वो कभी भी निकाल सकते हैं और उनको कोई स्ट्रेस नहीं आए। सो क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विमेन्स ऑफ द फैमिली, कि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स तो हो रहे हैं बट एक इमरजेंसी फंड है जो आपका गुल्लक में है या जो आपका बर्तनों में है। बट उस इमरजेंसी फंड का फॉर्मूला ये होता है कि आपके फैमिली के जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उस मंथली एक्सपेंसेस का 12 गुना, मतलब 1 साल के एक्सपेंसेस आपके पास इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। और वो इमरजेंसी फंड आपका होना चाहिए प्रोडक्ट्स लाइक FD, बिकॉज आप वो उस इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में नहीं डालोगे क्योंकि जब आपको जरूरत आएगी तब स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे है आपको नहीं पता। वो पैसा आपको जब चाहिए तब आप निकाल सकते हो। तो फिक्स डिपॉजिट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। सो अगर आपका फैमिली का मंथली खर्चा 50,000 रुपए है तो 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए और वो सारा पैसा आपका होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट में। सो दैट इज वन। टू मोर थिंग्स, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट बट इट इज माई ड्यूटी टू टेल। वन इज having a health insurance and having a life insurance in your family. Life insurance, लोग बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है और दैट, बट जनरली जो भी आपके फैमिली का एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। कभी कोई सिचुएशन आ जाए जिसके चक्कर में जो पैसे कमा रहे वो नहीं रहे, तब ये लाइफ इंश्योरेंस आपके सारे लोन्स, सारे बाकी की चीजों को कवर करेंगे। सो लाइफ इंश्योरेंस 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी। अगर आप साल का 12 लाख कमा रहे हो तो आपको 1.5 से 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्थ इंश्योरेंस में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आप देखोगे कि 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख का कवर, इन ये सारे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस कॉल्ड टॉप अप, जिसका मतलब ये होता है कि मैं पहला 5 लाख, जैसे आप 5 लाख के ऊपर टॉपअप लेते हो 25 लाख का, तो पहला 5 लाख आप खुद अपने जेब से भर सकते हो और उसके बाद का जो 25 लाख है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हमको पता है कि हमारे सेविंग्स की वजह से पहला 2 लाख या पहला 3 लाख या पहला 5 लाख अगर कोई इमरजेंसी आते हैं तो हम हमारे जेब से भर सकते हैं, बट अगर कोई बहुत बड़ा खर्चा आता है तब हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए टॉप अप इज अ ग्रेट प्रोडक्ट बिकॉज आपको 30 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा और वो आपको 1/10 प्राइस में मिलता है। सो लेट्स से अगर आप 10 लाख का कवर लेने जाते हो तो वो आपको 20-25 हजार में आएगा। वही अगर आप 30 लाख का टॉपअप प्लान लेने जाते हो तो आपको 4-5 हजार में।
So that's also a great product जो जनरली इंश्योरेंस एजेंट आपको नहीं बताते, बट मुझे लगता है कि that's a one good health insurance that you should buy, जहाँ पे 25 लाख 50 लाख का होना चाहिए. The expenses of surgeries, the expenses of different diseases is very costly these days. तो पहले 4-5 लाख का आप खुद भर दीजिए और उसके बाद 5 लाख के ऊपर या 10 लाख के ऊपर का टॉप अप लीजिए. मैंने खुद का पर्सनली 10 लाख का कवर मैं खुद भरूंगा और उसके ऊपर 10 से 90 लाख मतलब 1 करोड़ का इंश्योरेंस खुद के और खुद के फैमिली के लिए ले रखा है. And it cost me 7 to 8,000 rupees per year. So it doesn't harm much. आप जितना जल्दी लोगे उतना बेहतर है. लाइफ इंश्योरेंस भी जितना जल्दी लोगे उतना आपको कम प्रीमियम मिलेगा. So ये सॉरी हमारे पास बस आधा पौन घंटा था, तो आई थिंक दिस इज ऑल आई कुड कवर. मैं अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, बट आगे भी पूर्वा जी अगर इस जितने भी ऑडियंस यहाँ पर है या फिर बाहर है उनको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए तो मैं अपना फोन, हमारी टीम है यहाँ पर 150 लोगों की जो पर्सनली जीतो के सारे मेंबर्स को फ्री गाइडेंस एडवाइस ऑन बुकिंग एफडीज एनीथिंग हम देने के लिए रेडी है. तो आप जितने लोगों को डिटेल्स देना चाहते हो आप प्लीज दे दो. आपको ये सेशंस आगे भी करवाने हैं, कभी और करवाने, तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस. but this is a great honor. Sorry, I think हमारे investment is a very vast topic. We can take so much discussions, but आधे घंटे में I could cover only this. Okay, thank you so much. On behalf of Jito, I would like to extend our deepest gratitude to Saurav sir for sharing his invaluable insights and expertise. And I hope more such opportunities to hear you in future also. Okay, any audience, any of us wants to ask sir anything, so please raise your hand. Purvaji, there are questions in chat box. हम one by one ले लेते हैं. Yeah, yes, we will take that first. Somebody has said, can you please suppose the age of the person is 60 plus, then health insurance, Yes. what is the recommendation? What is recommended? So 60 plus के ऊपर health insurance मिलना is very difficult. तो एक चीज जो हम recommend करते हैं, if you have your kids who are working in any company, उन companies का एक corporate insurance होता है. तो उस corporate insurance में by paying some very minimal amount, your kids can add the parents into that health insurance. जैसे मेरे कंपनी का हम हमारे सारे एम्प्लॉइज को कॉर्पोरेट इंश्योरेंस देते हैं, जिसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भर के अपने पेरेंट्स को ऐड कर लिया, वरना उनको वो हेल्थ इंश्योरेंस बाहर नहीं मिलता. Okay. Somebody is asking, does Stable Money have any plans to move into wealth management? Can you suggest some good wealth management services? We do have plans, but not for the next 1-2 years. But eventually, we want to get into wealth management. Wealth management में I think बहुत सारे companies है. जैसे कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा. There is a Nuvama Wealth Management. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. There is 361. These are two wealth management companies. Sorry. These are two wealth management companies that are top of my mind right now. And these are very well renowned listed companies. Okay. Vaishali Jain is asking, what is gold bond? Gold bond is a type of mutual fund जिसको ये गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं. जैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, वैसे एक गोल्ड म्यूचुअल फंड. So there is a sovereign gold bond. Sorry, अगर आप उसकी बात करें तो sovereign gold bond was a bond issued by the government of India, जिसको अगर आप 8 साल रखते हो तो उसके बाद जितने भी रिटर्न्स आते हैं आपको वो टैक्स फ्री थे. बट वो sovereign gold bond is been stopped by government of India 3 months back, and that's why mutual fund gold become the most important product. So gold bond unfortunately अभी आपको कोई नया issuance नहीं मिलेगा, मैम.
She's also asking if anyone is having chronic disease, they don't get insurance of high amount, and how to get insurance. Yeah, ma'am. I think corporate insurance is the only thing because corporate insurance में क्या होता है, पर्सनली हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो तब आपका टेस्ट होगा और उस हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा. कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में वो पूरे कॉर्पोरेट मतलब जितने भी 50, 60, 100 लोगों का वो ग्रुप होता है उसको कॉमन इंश्योरेंस देते हैं जहां पर वो आपका कोई टेस्ट नहीं करते. So in that cases, you will still get the health insurance. So ideal is any kids, anybody who is into a corporate health insurance who can add you. So in that corporate insurance, you can get added even with a chronic disease. Any specific gold mutual fund suggestions you have? Which is a nice long-term investment that is tax-free. Yes. So हमारे यहाँ पर भी 3 महीने में गोल्ड म्यूचुअल फंड आएगा, बट अगर आप तब तक लेना चाहते हो तो आईसीआईसीआई का गोल्ड म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट प्रोडक्ट बिकॉज हर म्यूचुअल फंड एक आपको फीस चार्ज करता है. आईसीआईसीआई की गोल्ड म्यूचुअल फंड की फीस सबसे कम है. If anyone wants to talk to sir face to face, means personally ask him something, can raise hand. We'll take few more questions. Purva Sharmila ji Jain wants to ask something. Sharmila ji Jain. Can you unmute? Shweta ji, can you unmute Sharmila ji? Jai Jinendra Saurabh ji, thank you so much for the inside view of investing. I just wanted to understand because there is a traditional way of cash purchase of gold from a normal jewelry shop and keep it in the locker because we already have a Yes, locker. So we already have a locker, so there's not extra expenditure for maintaining a locker. So Right. buying the biscuits and keeping in the locker, difference Right. between and taking a gold bond from the ICICI Gold Mutual Fund. I just wanted to understand the difference. डिफरेंस मैम आपको जीएसटी का लगता है. सो जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हो और अगर आप बिल पे लेते हो अनलेस यू आर गोइंग गिविंग कैश एंड देयर इज अ रिलेशनशिप विद ज्वेलर, बट अगर आप फिजिकल उसका हाँ तो कैश में तो मैम दैट प्रोडक्ट इज एनीवेज द बेस्ट प्रोडक्ट. बट जहां पर आप वो कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते उनके लिए आई थिंक गोल्ड म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट प्रोडक्ट बिकॉज सेफ्टी है. और वहां पर गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक बेनिफिट है जो आपको शायद फिजिकल में इतना ना मिले बिकॉज आप फिजिकल में हर महीने 6 महीने 3 महीने में जाके गोल्ड लोगे तो आपको पता नहीं प्राइस. जैसे सडनली देखते देखते गोल्ड हैज रीच 90,000-95,000. आज मार्केट प्रेडिक्शंस ये बोलते हैं कि गोल्ड कुड रीच 1,20,000 अगले 1 से 2 सालों में. बट हम रोज जाके तो गोल्ड का प्राइस नहीं देखते ना लेते हैं. बट म्यूचुअल फंड में वो होता है कि आपका एक डेली एसआईपी सेट कर सकते हो जहां पे डेली आपका 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए कटता रहेगा और आपका गोल्ड बनता रहेगा और वो उस दिन का प्राइस लेगा. तो ऐसा नहीं है कि आज सडनली हमको रियलाइज हो कि गोल्ड 1 लाख पहुंच गया और फिर हम लेके जाना है गोल्ड बिकॉज आपको तब 1 लाख पे मिलेगा. आप जब डेली करोगे एसआईपी या वीकली तब आपको वो पुराने प्राइसेस मिलते रहेंगे. सो दैट इज द ओनली एडवांटेज इफ आई कंपेयर विद कैश. अदरवाइज नथिंग बीट्स कैश. कोई टैक्स का प्रॉब्लम है ना कोई प्रॉब्लम है. अच्छा, तो ये जो गोल्ड का गोल्ड म्यूचुअल फंड जो आईसीआईसी का बोल रहे हैं, just download the app and do the formality and we can go ahead with that. यस मैम. आप कोई भी मतलब आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड लेना है तो आप किसी भी ऐप के थ्रू भी ले सकते हो. अगर आप जुलाई तक वेट करोगे तो आपको स्टेबल मनी पे भी मिल जाएगा आईसीआईसीआई का. तो वो आपको सिर्फ आईसीआईसीआई के वेबसाइट पे जाके लेने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी ग्रो, जीरोधा, स्टेबल मनी के ऐप किसी के थ्रू भी ले सकते हो. Okay, thank you so much. किसी ने आई थिंक इंडेक्स फंड का भी पूछा है. सो अगर आप निफ्टी 50 या इंडेक्स निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी लेना चाहते हो, बाय नावी म्यूचुअल फंड बिकॉज नावी म्यूचुअल फंड जब हमने लॉन्च किया था वी लॉन्च विद द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो जो हम कस्टमर्स को चार्ज करते हैं. तो बाकी के म्यूचुअल फंड आपको 30-40 बेसिस पॉइंट चार्ज करते हैं. ये नावी म्यूचुअल फंड आपको सिर्फ 6 बेसिस पॉइंट चार्ज करता है. सो दैट्स द बेस्ट प्रोडक्ट. Okay. Anyone for questions? We are moving towards a conclusion. So anyone want to ask anything? How do you find investment? Sagar Hinsali is asking you something.
How do you find investment in LIC? It's not a great product, sir, to do investment in LIC. I know it's a very trusted entity जहाँ पर आप पैसा डालना चाहते हो, but आपके returns on investment on LIC is not great. आपका 6 से 7% पोस्ट टैक्स बनता है LIC पे, which is not good. बस वो numbers थोड़े inflated दिखते हैं because there are different ways of showing those numbers on LIC. But मैंने personally खुद का और पेरेंट्स का LIC इन्वेस्टमेंट्स बंद करवाया because it's not great return on investment. So avoid doing LIC is my personal recommendation. Vaishali Ji Jain, he has raised hand. You want to ask something? Yes, sir, gold or silver, which is a better investment for future? Sorry, ma'am. Gold or Silver. Silver. ma'am, so gold is a better investment because gold is an investment product. Silver का बहुत सारा medical use और industrial use होता है. So the prices of silver changes a lot depending upon the demand in the industry. Gold is a very stable product in that way. So if you are looking at investment, I think, but आपको फिर भी silver करना है, तो आप 10-20% silver कर सकते हो. But mostly अगर आप investment देख रहे हो, तो gold is the best product. There is nothing beats gold. हमको कभी-कभी लगता है कि silver के prices बहुत ऊपर चले गए, miss हो गया. But silver के prices उतने fast गिरते भी हैं. It's not like gold prices. One more question, sir. अगर जियो का हेल्थ इंश्योरेंस है तो उस पे टॉप अप हमको मिल सकता है? हाँ मैम, आपको टॉप अप, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आप टॉप अप कभी भी ले सकते हैं मैम. नहीं, पर सर विद अ क्रॉनिक डिजीज डू दे गेट क्रॉनिक डिसीज? नो मैम, विद क्रॉनिक डिसीज अनफॉर्चुनेटली ना टॉप अप मिलेगा ना बेसिक मिलेगा. ओके, सो वो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक यूज केस. अगर आपको और हेल्थ इंश्योरेंस मैम और समझना है कि कौन से स्पेसिफिक डिसीज के लिए ले सकते हो नहीं ले सकते हो, तो मैं आपको एक नाम अभी लिख के दे रहा हूँ मैम. आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हो. इनका नाम है डिट्टो इंश्योरेंस. तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हो, एक सेशन बुक कर सकते हो और आप उनको आपके सारे सवाल बोल सकते हो कि कौन सी क्रॉनिक डिसीज है, क्या है. वो आपको पूरे डिटेल्स निकाल के देंगे कि आपको कौन सा इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना प्रीमियम लगेगा. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. Someone is asking that any way to get life insurance for a woman with no business income. Yes, life insurance is for everybody. Life insurance के लिए आपको इनकम होने की कोई जरूरत नहीं है. आपको प्रीमियम भरना पड़ता है और होना चाहिए. हर एक का फैमिली में एक इंश्योरेंस होना चाहिए. सो फॉर हाउस वाइफ जनरली हम बोलते हैं कि 1 से 2 करोड़ का आपका एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और आप ले सकते हो. इसके लिए आपको कोई सैलरी प्रूफ्स या कुछ देने की जरूरत नहीं होती. यू कैन बाय अ 1 crore और 2 crore लाइफ इंश्योरेंस एंड पे द प्रीमियम. आपको इसके लिए जॉब होने की जरूरत नहीं है. Okay. I think all questions are done. Anyone calling? Just we'll take one more minute. Anyone? So we are moving. I think no questions. Yeah, I saw that. So we are moving towards our conclusion of the session. I request Jito Ladies Wing Chief Secretary Rituji Chordia to convey vote of thanks. Is she there? We'll be only doing. Pura, you only do vote of thanks. Okay. Saurabh ji, thank you so much for coming, blessing us, joining us today, and helping all the beautiful women of Jito Ladies Wing. And really, you gave I think, the right track, the right path. You showed how to invest and how to, invest to sab kuch, everywhere they do, but right way you taught us in very less time. I think आपका सेशन 2-3 घंटे का मिनिमम होना चाहिए. Minimum. We are not satisfied with 1 hour session. So definitely we will, Jito will plan for more session
And we'll plan something in JLW Conclave we are planning soon. So definitely let's make you a part of it. Thank you so much for coming, and thank you so much, Purva. You connected as a ROM co-convener. So I'm really blessed and thankful to have you all. Thank you, beautiful audience. Thank you all the CPCAs, Apex team, ROM team, everyone, especially our dynamic Sonali ji, Sheetal ji, Rajendra ji, everyone. Thank you so much, all the CPCAs, Jito members, Priyanka ji, DG Nari convener. Thank you so much, everyone, for joining. Jai Jinen. Jai Jinendra. With that, I Sheetal ji, आपका एक last review कैसे रहा? please, How ma'am. you felt? Unmute करो. Shweta, please unmute शीतल जी. जय जिनेंद्र, मैं शीतल जी की बेटी हूँ. मेरी मम्मी ने कहा मुझे आपका सुनने, so I'm very impressed by it. Thank you so much. अब सिर्फ मेरी एक बेटी नहीं, एक बेटी और है, उसको भी सुनाया, उसको भी पसंद आया. You say? Yes, क्या it's बात है. See, Saurabh, you are connected with so many, even the young Thank you crowd. so much. Thank you so much. शीतल Thank जी, you so आप much. प्लीज रिव्यू दीजिए, आपको कैसे लगा आज का ये तो सेशन? मेरी डॉटर ही बोल रही थी रिव्यू. I did not listen. I listened to the last 20 minutes, and even those 20 minutes, I got to know a lot, like why silver prices fluctuate and all. It was insightful. Maybe I should have joined from earlier. Like, Soon we will No, plan we'll more chat sessions. anytime. Don't worry. Thank you so much, Purva ji and Dimple ji and Jalna chairperson, everyone. Thank you so much. Thank you, Saurabh bhaiya. Thank you. Thank you. Thank you for letting us know your Thanks to expertise. Priyanka also, our DG Nari convener. She is very dynamic. Yeah, thank you, Saurabh sir. उन्होंने फटाक से हाँ बोल दिया. पूर्वा जी, सब लोग पूछ रहे contact details of सौरभ जी. They want to get connected, so please put a message. He has put ROM conclave में मिलते हैं फिर सौरभ जी से. Yes, शीतल जी declare Yeah, कर you दिया, want- ROM conclave में बुलाएंगे. नहीं मैम, मैं एक्चुअली यहाँ पर नंबर दे देता हूँ आपको. अगर एफडीज के बारे में कुछ भी करना है और अगर आप स्टेबल मनी पे एफडीज लेना चाहते हो, मेरे साइड से एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर आपको ये सारे एफडीज के डिटेल्स बता देगा. तो आप मुझे बस व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपको स्टेबल मनी ऐप से एफडी बुक करनी है. माय स्पेशल रिलेशनशिप मैनेजर विल पर्सनली हेल्प एनीवन, यू, योर फैमिली, अगर कोई आपके फ्रेंड्स है उनको भी. आई थिंक विल बी हैप्पी टू डू दैट. सो मैंने नंबर डाल रखा है, तो आप कर दीजिएगा. Yes, thank you. As Thank Jalna you. is special to you, you are special to us. So it's an honor for Jalna Ladies Wing, ROM and National Apex team to have you with us. And with that, I officially conclude today's session. Wishing you all a wonderful day. Jai Jinendra. Thank you very much. Thank you.